Hello everyone. So today's topic is our next algorithm for VSD, that is the visual surface detection or hidden surface removal. Okay, so the name of the algo is depth buffer method or Z buffer method, and this is the algo that has been used most for visible surface detection, and this is very important from the exam perspective also. Okay, so before moving to the algorithm, we must understand the limitation of the backface removal algorithm that we have discussed in previous lecture also, but I'm going to discuss them again. That with the backface removal algorithm, we have faced one problem, that this algorithm is able to detect the back faces uh, of objects that are convex in nature. That means for the occluded surfaces, for the surfaces that are hidden by objects in front of them, they cannot eliminate those types of objects. Or like in this example, this is a solid object, so it's a triangular object, and behind this object we have this rectangular object. So this triangular object is hiding some part of this rectangular object, so the backface elimination algorithm is not able to eliminate this particular portion that is hidden by this triangular object. Okay, so that was the problem with the backface detection. It was limitation that it can be applied to only those objects where the objects are placed separately from each other. Okay, so why do we need them? Still, why do we need to use backface detection algo? Because backface detection is used as pre-processing for other VSD algorithms, because on an average 50% of surfaces are backfacing in a sea. Still, we are using this backface detection algorithm as the pre-processing step for the actual visual surface detection algo, such as Z-buffer algo. So before applying Z-buffer algo for the visual surface detection, uh, that particular scene has gone through the backface detection algorithm. It must go through the backface detection algorithm because uh, this algorithm is so simple to implement that we have seen that to identify a surface as a backface, we must see the sign of the direction cosine of the z component of the normal to the surface. That means जो हमारा नॉर्मल वेक्टर था उसका जो z component था, that is c component, उसका जब हम साइन देख लेते थे तो डिपेंडिंग अपॉन वो आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द व्यूइंग डायरेक्शन वेदर वी आर लुकिंग towards the negative z direction or to the positive z direction, the sign of c actually tells us that a given surface is backface or not. So on an average, roughly we can see that in a particular complex scene where there might be thousands of objects placed, 50% of surfaces are backfaces. So just applying backface algorithm, or just by calculating the sign of uh, direction sign of C, we can find out the back faces in a particular scene, and we can we can discard them. Okay, so it is used as a pre-processing step, but it has some limitation. That is for surfaces that are occluded by another solid surfaces, it cannot find out those particular surfaces. It cannot work in this scenario. Okay, सो ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो हमारी नेक्स्ट एल्गोरिदम है जेड बफर मेथड, वो इस टाइप के सिनेरियो पे एप्लीकेबल हो जाएगी. तो सबसे पहले मैं आपको गोल बताती हूँ कि व्हाट इज द गोल ऑफ जेड बफर मेथड. सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये आप सिनेरियो देखिए, ठीक है. देर आर थ्री objects, or we can say three polygon surfaces. Okay, these three object 1, object 2 and object 3.
and this is the projection plane, and there will be here some यहाँ पर आपका कहीं पे होगा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस साइड पे खड़ा है, इस तरीके इस तरफ देख रहा है, ठीक है ना, सो इट इज लुकिंग इन दिस डायरेक्शन। सो दीज थिंग्स, बिकॉज ये सबसे आगे है, फिर इसके पीछे ये, इसके पीछे ये है, सो दीज थ्री ऑब्जेक्ट must appear like this, है ना, because this triangle has obscured some part of this particular object too, and this particular object has been obscured view of this particular object. So these three objects will be projected something like this. तो ये तो हम बैक फेस में कर नहीं सकते थे, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं जेड बफर मेथड का। तो जेड बफर, और ये भी सेम सिनेरियो, यहाँ पर मैंने बस प्रोजेक्शन प्लेन की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी। अब यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन प्लेन है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो अगर कोई इधर से भी देखेगा तो उसको ये सीन कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। नाउ we start with the Z buffer method, Z buffer method, that this is an image space method. So backface detection was an object space method. That means we work with the physical coordinates there. Here we will be dealing with the device coordinates. Okay, that means coordinates after projection. Okay, so for each x, y, z point on a polygon surface corresponds to the point xy on the view plane और प्रोजेक्शन प्लेन। ये पॉइंट ये कह रहा है कि क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइस कोऑर्डिनेट्स के साथ डील करेंगे, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है रियल लाइफ में तो उसके 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स, वाई और जी, लेकिन आप उसको जब प्रोजेक्ट करते हैं 2 डायरेक्शन वो 2D प्लेन में, तो उसका जो z कोऑर्डिनेट होता है वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, वो डेप्थ में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। सो फॉर ईच पॉइंट एक्स वाई जी, फॉर ईच एक्स वाई जी पॉइंट ऑन अ पॉलीगन सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट, यानी कि अगर मैं इसमें एक पॉइंट लूं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई जी, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट will be projected as point x, y because z कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट नहीं होता। क्लियर है? उसके बाद आपका क्या होगा, एट ईच पिक्सल पोजीशन x, y on the projection plane, this method computes the surface depth and compare these depth value. Now बेसिक आइडिया क्या है इस एल्गोरिथम का, वो ये है कि आपको क्या करना है, आप कैसे पता लगा पाओगे कि ये ऑब्जेक्ट सबसे आगे है, ये उससे पीछे है, ये उससे पीछे है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 3 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि these objects has to be opaque objects. opaque होंगे तभी तो दूसरे के व्यू को ये रोक पाएंगे, ठीक है, हाइड कर पाएंगे। तो अगर ये सबसे ज्यादा आगे आपका ट्राइंगल है, ठीक है, सो यहाँ पर जो कंसेप्ट होता है वो होता है डेप्थ कैलकुलेशन का, है ना। तो हमें ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट में, इन तीनों ऑब्जेक्ट में सबसे आगे कौन सा ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें से किसकी z वैल्यू जो है, ओके, वो हमें देखनी है कि व्यू प्लेन से कितनी है, ओके, और डेप्थ कंपेयर करनी है। ये डेप्थ हम कंपेयर करेंगे तीनों की, और फिर हमें पता लगेगा कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे आगे दिखना चाहिए, फिर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट हाइड हो जाना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली वी आर व्यूइंग अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है, तो वी आर व्यूइंग अलोंग द जी एक्सिस, so we need to compare the depth value, or depth value is represented by the z coordinate. We have to compare the z coordinates for every object, okay, and then we will plot that particular pixel. See one more thing, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे, मैंने ये लाइन क्यों बनाई हुई है, ये लाइन इसलिए बनाई हुई है क्योंकि लेट्स सपोज एक लाइन में ही 3 पिक्सल है, यानी कि अगर जहां भी ये तीनों पिक्सल ओवरलैप हो रहे होंगे, है ना, तो ये वाला पिक्सल, ये वाला पिक्सल, ये वाला पिक्सल, ये तीनों पिक्सल एक ही लाइन के थ्रू जा रहे हैं, यानी कि ओवरलैपिंग पिक्सल है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ वी आर कंसीडरिंग 3 पिक्सल, ओके, सो एक एट अ सिंगल पॉइंट, सपोज ये जो लोकेशन है, इसी लोकेशन पर इस ट्राइंगल का भी एक पिक्सल है,
इसी पे इसका भी पिक्सल है और इसका इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इस थर्ड ऑब्जेक्ट का भी पिक्सल है, लेकिन हमें इन तीनों पिक्सल में से कौन सा पिक्सल एक्चुअली रेंडर करना है, तो हमें वही पिक्सल रेंडर करना होगा जो हमें दिखना है, यानी कि ट्राइंगल वाला पिक्सल यहाँ पे दिखना चाहिए, ये दोनों यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो ये पिक्सल वैल्यू कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्सल वैल्यू की जो इंटेंसिटी होती है वो हम पिक्सल की जो इंफॉर्मेशन होती है, दैट मीन्स द इंटेंसिटी वैल्यूज आर स्टोर्ड इन frame buffer. Okay, so if you encounter such situation where objects are placed like this, here I have considered only 3 objects, so you might consider 100 objects or more than 100 objects, but at in a particular we can consider in a particular line, if we have to consider that thousand objects are placed one after another, you will be able to see only a single pixel in front of you. Okay, so यहाँ पर सिर्फ आपका ट्राइंगल का ही दिखेगा पिक्सल इस पोजीशन पे, इसी पिक्सल पोजीशन पर जो ये वाला शेप है आपका, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी वैल्यू आपको नहीं दिखेगी। ओके, सो दैट वाज द कंसेप्ट। और ये कैसे पता चलेगा, जब हम इन तीनों की z वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और z वैल्यू में जो भी प्लेन हमारा सबसे पास होगा, ठीक है, जो प्लेन हमारा सबसे पास होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर 3 चीजें आपकी सामने रखी हुई हैं तो जो चीज सबसे आगे रखी हुई है वो ही पीछे के 2 ऑब्जेक्ट्स के व्यू को जो है रोकेगी। ठीक है, तो जो हमें क्या देखना है कि हमारे प्लेन से जो सबसे आगे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो सबसे आगे जो सरफेस है उसके पिक्सल को हमें कंसीडर करना है ना। सो दैट वाज द कंसेप्ट। और ये जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की व्यू प्लेन से जो डिस्टेंस होती है वो कैसे कंसीडर होती है, वो z वैल्यू से कंसीडर होती है, डेप्थ वैल्यू से कंसीडर होती है। सो वी मस्ट कंसीडर द डेप्थ ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट फॉर अ सर्टेन पॉइंट एंड देन we must compare these depths, okay, and then we have to decide which depth value should be rendered. Okay, so moving on, the same thing is written here, that at each pixel position xy on the projection plane, okay, this method computes the surface depth and compare the depth values. Okay, तो इस xy पोजीशन पर, इस xy पोजीशन पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ट्राइंगल का पॉइंट लेना था या इसका पिक्सल लेना था या इसका पिक्सल लेना था, वो डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो z कोऑर्डिनेट इस ट्राइंगल के लिए, z कोऑर्डिनेट इसके लिए और z कोऑर्डिनेट इसके लिए, फॉर द सेम xy पोजीशन, एंड वी विल कंपेयर दोस डेप्थ वैल्यू एंड व्हिचएवर z वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द प्लेन वो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, this method is called z buffer method since object depth is actually measured from the view plane along z axis of a viewing system. लेकिन नाम इसका z buffer इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक तो बफर का मतलब होता है आपका मेमोरी स्पेस। ठीक है, तो हम z वैल्यू को क्या करते हैं, अलग से एक बफर, एक मेमोरी एरिया लेते हैं, उसको हम बफर कहते हैं। उस बफर के अंदर वी विल स्टोर द z वैल्यूज ऑफ एवरी पिक्सल ऑन द सरफेस। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के जो जितने भी पिक्सल हैं उनकी जी वैल्यूज को हम एक अलग सेपरेट हार्डवेयर मेमोरी में बफर में हम स्टोर करेंगे। तो नाम इसलिए इसका जी बफर है। और हम क्या लगते हैं, सिंस ऑब्जेक्ट डेप्थ इज एक्चुअली मेजर्स फ्रॉम द व्यू प्लेन अलोंग जी एक्सिस ऑफ अ व्यूइंग सिस्टम, क्योंकि हम देखते क्या है, जेड डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, तो हमें जेड वैल्यू पर ही अपने कैलकुलेशन को बेस करना होगा। 2 buffers are used. ओके, तो यहाँ पर 2 बफर्स यूज होते हैं इस एल्गोरिदम में। एक तो होता है आपका जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, फ्रेम बफर, ठीक है, जिसको हम रिफ्रेश बफर भी कहते हैं। सो वी विल यूज रिफ्रेश बफर, दैट इज अ सेपरेट मेमोरी एरिया, एंड वी ऑल्सो यूज अ डेप्थ बफर, okay, that is a buffer to store the z values of every pixel on the polygon surface. So polygon के ऊपर जितने भी पिक्सल पॉसिबल हैं, उन जितने भी पिक्सल से वो पॉलीगन बना हुआ है, उन पिक्सल की जितनी भी z वैल्यूज हैं उनको उस डेप्थ बफर में रखा जाएगा। और आप जानते हैं कि पिक्सल की क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लस इंटेंसिटी वैल्यू दैट मींस द कलर वैल्यू ऑफ द पिक्सल।
So that color value, तो यहाँ पे adapt मैंने क्या लिखा, to store the z value for each xy position on as surface is processed. जैसे जैसे surface को, एक बात मैंने आपको और बताई थी कि इमेज स्पेस मेथड जो होता है इट वर्क्स फॉर द रेस्टर ग्राफिक सिस्टम. जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था बिटवीन द ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड एंड इमेज स्पेस मेथड, so I've told you that object space method works for the vector graphic system and image space method follow the raster graphic system. So raster graphic system, you all know that we scan convert every object. Scan converting means we scan the object line by line, pixel by pixel. Okay, so for that purpose हम क्या कर रहे हैं कि हम हर एक पिक्सल की z वैल्यू को जैसे जैसे सरफेस को प्रोसेस करते जाएंगे, एक एक की z वैल्यू को कैलकुलेट करके और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे. तो ये जो z वैल्यूज हैं वो कहाँ रखी जाएंगी, उस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया को वी कॉल इट एज z बफर और डेप्थ बफर. दोनों ही टर्म्स आप यूज कर सकते हैं. एंड रिफ्रेश बफर इज सेम कंसेप्ट जो हम आज तक यूज ही करते आ रहे थे कि जो पिक्सल की कलर इंफॉर्मेशन होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो आप फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर में लिखते हो. तो दैट इज यूज्ड टू स्टोर द इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ ईच पिक्सल इन इमेज स्पेस. ओके, नाउ मूविंग ऑन, स्टेप्स फॉर प्रोसेसिंग. इसको बताने से पहले, मतलब दिस इज द एक्चुअल एल्गो वेयर योर एल्गोरिदम स्टार्ट्स. इससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ. देखिए किस तरीके का दिखता है आपका जी बफर. तो इफ यू कैन सी दैट इस टाइप का एक मेमोरी एरिया होता है आपका, पूरा ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है. और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि ये वाला जो होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, और वाई जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स वर्ल साइड. वाई मतलब मूविंग टुवर्ड्स बॉटम, बिकॉज स्क्रीन को हम इस तरीके से रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम. तो यहाँ पर जेड बफर जो है ये क्या करेगा कि आपका कोई पिक्सल है 3,2, तो 3,2 का होगा पिक्सल, एक्स वैल्यू 3 एंड वाई वैल्यू इज 2. ठीक है, 1 एंड 2, एक्स वैल्यू 3 वाई वैल्यू 2. यहाँ पर जो जेड वैल्यू होगी वो यहाँ पर स्टोर. ठीक है, पिक्सल की 3,2 पिक्सल, तो पिक्सल 3,2 ये वाला पिक्सल होगा और यहाँ पर इसकी जेड वैल्यू को स्टोर किया जाएगा. ये जेड वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, कैसे करेंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे. और ये हमारा रिफ्रेश बफर है, तो रिफ्रेश बफर में भी 3,2 पे ये जो इंटेंसिटी वैल्यू यानी कि कलर वैल्यू जो होगी उस पिक्सल की वो स्टोर होगी. तो यहाँ दो टाइप के हम बफर यूज करते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट द एल्गोरिथम. फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन. ओके, सो यू हैव टू इनिशियलाइज बोथ द बफर्स, है ना, जी बफर एंड इंटेंसिटी बफर. तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, फॉर ऑल x, y डेप्थ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी मैक्स, यानी कि ये डेप्थ बफर को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड रिफ्रेश ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आई ऑफ बी, यानी ये क्या लिखा हुआ है कि जो आपका जी बफर है, ये वाला जो बफर है, हम पहले इसको इनिशियलाइज कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू से. तो कई बुक्स में आप ये मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, पर हमने मैक्सिमम वैल्यू लेट सपोज मान ली है इन्फिनिटी. सो आप इन्फिनिटी से सबको इनिशियलाइज कर दो. और इंटेंसिटी का को जो आप इनिशियलाइज करोगे वो कैसे करोगे, बैकग्राउंड कलर से, बिकॉज आप जो भी प्रोजेक्शन प्लेन पे ड्रॉ करने वाले हो यू ऑल्सो हैव बैकग्राउंड. ओके, सो इनिशियली द रिफ्रेश बफर वुड बी फिल्ड विद द बैकग्राउंड वैल्यूज. तो इनिशियली अभी क्या है, कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ है, तो सब कुछ इंटेंसिटी बफर में क्या है, IB इज द बैकग्राउंड इंटेंसिटी एंड डेप्थ बफर के अंदर हम जी मैक्स से इनिशियलाइज कर लेंगे. क्यों कर रहे हैं हम जी मैक्स से, क्योंकि हम इस बफर को इनिशियलाइज कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स जो आपका फार्देस्ट डिस्टेंस है व्यू प्लेन से, उससे हमने इनिशियलाइज कर दिया. आगे हम हर एक सरफेस के लिए चेक करेंगे, जो जो वैल्यू हमें कम आती रहेंगी जेड की, उनको हम अपने बफर में स्टोर करते रहेंगे. ठीक है, सो इनिशियलाइजेशन तो हमने इस तरीके से कर दिया. नाउ स्कैन कन्वर्ट ईच पॉलीगन. स्कैन कन्वर्शन का मतलब क्या है कि आप जैसे ये ट्राइंगल था, तो ईच पॉलीगन को हम मतलब we have to scan convert every polygon. So you can start with this polygon or you can start with this polygon or you can start with this polygon even.
So you can scan convert any polygon in arbitrary order. स्कैन कन्वर्जन का मतलब है कि आप पिक्सल बाय पिक्सल अब आप इस को चेक करोगे, ठीक है, और फिर z वैल्यू कैलकुलेट करोगे. तो फॉर ईच पिक्सल पोजीशन एक्स वाई ऑन ईच पॉलीगन सरफेस, लेट्स सपोज मैंने ट्राइंगल से स्टार्ट किया, तो उसकी फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट किया एक्स कॉमा वाई, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एवरी पिक्सल पोजीशन वी हैव टू कैलकुलेट द z वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर पिक्सल पोजीशन. तो सबसे पहले मुझे जो एक्स वाई मैंने पिक किया है उसकी z वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर उस जो हमारी कैलकुलेटेड डेप्थ वैल्यू है उसको प्रीवियसली स्टोर्ड जो वैल्यू है सेम पोजीशन में z बफर के अंदर उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है. यानी कि इनिशियली तो देखिए हमने सब में क्या डाला था, इनफाइनाइटी डाला था. तो लेट्स सपोज 3,2 पे वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. अब z की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, जो भी आएगी वो आपकी इन्फिनिटी से तो कम ही आएगी, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ वी कंपेयर इफ z, यानी कि आप यहाँ पे कई बुक्स पे z न्यू भी लिखा रहता है या डेप्थ न्यू भी लिखा रहता है, यानी कि जो कैलकुलेटेड न्यू वैल्यू उसको मैंने z से रिप्रेजेंट किया. इफ द कैलकुलेटेड z इज लेस देन डेप्थ ऑफ x कॉमा y, तो फर्स्ट स्टेप में तो ये आपका ट्रू ही होने वाला है बिकॉज यू हैव इनिशियलाइज्ड योर डेप्थ बफर एज infinity, so the calculated value will be always less than z. तो आप क्या करेंगे, जो आपका डेप्थ बफर होगा उसको आप असाइन कर दोगे, मतलब वैल्यू रिप्लेस कर दोगे. तो इन्फिनिटी की जगह पर यू विल राइट द न्यू कैलकुलेटेड वैल्यू. और रिफ्रेश बफर में आप क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर एक्स वाई पॉइंट के लिए आपने जेड वैल्यू कैलकुलेट करी है उस पिक्सल की जो कलर इंटेंसिटी है, ठीक है, वो आप यहाँ पर असाइन कर देंगे. तो बेसिकली IS इज रिप्रेजेंटिंग द कलर इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल पोजीशन x कॉमा वाई. ओके, इस तरीके से ये चलना है. तो यही आपकी कंप्लीट एल्गो है. तो अगर मैं इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं, तो आप देखिए, आपने लेट्स सपोज आपने इससे स्टार्ट किया है ना, या आपने इधर से स्टार्ट किया, तो इधर से आपने स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, क्योंकि हमारा जो पॉइंट इन क्वेश्चन है वो यही है, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि, या इस पूरे एरिया, मैंने एक ही पॉइंट सेलेक्ट किया है, बहुत सारा जो एरिया है वो जो है ऑब्सक्योर हो जा रहा है, मतलब ढक जा रहा है आपका इस वाले ट्राइंगल की वजह से, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना. तो हमने कैलकुलेट किया सपोज इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इसकी z वैल्यू कैलकुलेट कर दी फॉर सम फॉर्मूलाज जो हम आगे देखने वाले हैं, z वैल्यू कैलकुलेट कर दी. अब दैट वैल्यू इज ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, जो हमारी एल्गोरिथम कह रही है. तो आप क्या करेंगे, z में अब ये वाली वैल्यू जो है वो डाल दोगे, ठीक है. और z वैल्यू आपने जब यहाँ पे डाल दी, तो साथ ही साथ आपको इंटेंसिटी बफर भी या रिफ्रेश बफर भी है उसको भी अपडेट करना है. यानी कि अगर मैं आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए बता दूं कि ये कलर रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, तो अभी आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो ब्लू के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है. अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने इस सरफेस को पूरा स्कैन किया और आप इस पॉइंट पे पहुंचे. इस पॉइंट पे जब आपने z वैल्यू कैलकुलेट करी, तो पुराने z से चेक होगा, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन ये कह रही है कि जो कैलकुलेटेड z वैल्यू है उसको पुरानी डेप्थ वैल्यू से कंसीडर करो. सो हम जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट हो उसके लिए z वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको जो अभी डेप्थ वैल्यू में करंट वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे. अगर तो वो कम हुई, ठीक है, तो हम रिप्लेस कर देंगे. सो इस केस में आपको दिख रहा है कि कमी होगी, बिकॉज ये पिक्सल ज्यादा थोड़ा पास है व्यू प्लेन के, तो इसकी z वैल्यू से इस एक्स वाई पोजिशन पे हमेशा कम होने वाली है. तो अगेन डेप्थ बफर जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, और इंटेंसिटी बफर में, ये सपोज मैंने ब्लू से लिया था, तो यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा. और आगे जब हम इस पोजीशन पे पहुंचेंगे तो फिर सेम चीज होगी, z बफर इसकी z वैल्यू इसकी z वैल्यू से कंपेयर होगी, सिंस द z वैल्यू इसके लिए जो होगी वो कम आएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी z वैल्यू जो है, ये इसकी डिस्टेंस जो है व्यू प्लेन से वो कम है. ओके, सो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इस पर्टिकुलर सरफेस के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की जो z वैल्यू है एक्स वाई लोकेशन पर वो कम होगी. सो अगेन आपका रीअसाइन हो जाएगा, ठीक है, z डेप्थ बफर के अकॉर्डिंग, और इंटेंसिटी वैल्यू अब ट्राइंगल की आएगी. तो फाइनल जो आपका रिफ्रेश बफर में जो वैल्यू आएगी
वो वही वैल्यू होती है जो आपको रेंडर करनी होती है। बेसिकली फ्रेम बफर से जो हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं उसी को आप रेंडर करते हो, ओके, यानी कि डिस्प्ले करते हो। तो फाइनल आपकी ट्राइंगल की, सपोज आप रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेड यानी कि वो जो भी कलर वैल्यू है वो आपको दिखेगी, यानी कि आपको ट्राइंगल ही दिखेगा, उसके पीछे जो पार्ट छुपा हुआ है दूसरे सरफेस का वो नहीं दिखेगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस एल्गोरिदम, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है इस एल्गोरिदम में, जो मैंने एल्गोरिदम आपको बना दिखाई है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग मिलेगी, है ना। वो कंसेप्ट कैसे होगा, कहीं कहीं पे ये भी होगा कि z इज ग्रेटर देन कंडीशन होगी, तो ये लेस देन होनी है या ग्रेटर देन होनी है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डिपेंड करेगा आपका व्यू डायरेक्शन पे, ठीक है। सो दो सिचुएशन हो सकती हैं आपकी, मैंने आपको बैकफेस पे भी बताया था कि इफ यू आर सिटिंग एट द नेगेटिव z डायरेक्शन एंड यू आर लुकिंग टुवर्ड द पॉजिटिव z डायरेक्शन, or you are sitting in the positive z direction and you are looking towards the negative z direction. So in both the cases the algo will be changed accordingly, ठीक है। इनहेरेंट कंसेप्ट सेम रहने वाला है, जो इंटरनल जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है कि जो भी आपका सरफेस सबसे आगे है वो डिस्प्ले होना चाहिए और जो सरफेस सबसे दूर है वो आपका डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो ये लिखिए, द इनिशियलाइजेशन ऑफ जी बफर डिपेंड्स अपॉन द व्यू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। कई कई पर लोग जी बफर को 0 से भी इनिशियलाइज कर देते हैं, है ना। वो किस सिचुएशन में करेंगे, वो जब मिनिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं, मतलब जी बफर को मिनिमम से इनिशिएट कर देते हैं, फिर चेक करते हैं कि नई वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर तो ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में और देख रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ, ओके। सो इफ यू आर सिटिंग एट नेगेटिव जी एंड यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव जी डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये जो सरफेस होगा, पहला सरफेस, इसकी मैंने मान लिया जेड वैल्यू 2 है इस पर्टिकुलर पिक्सल की, इसकी 6 है, इसकी 8 है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे ये पीछे जाती जाएगी तो जेड वैल्यू पीछे जितने ज्यादा दूर होते जाएंगे सरफेसेस, उतनी ज्यादा जी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये किस केस में होगा आपका, जब आप पॉजिटिव की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो पॉजिटिव की तरफ देख रहे हैं तो हमारी ये वाली एल्गोरिदम जो है, जब मैंने जी बफर को इनिशियलाइज कर दिया है इन्फिनिटी से जब मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया है, तो उस केस में ये वाली एल्गोरिदम बिल्कुल परफेक्टली चल रही होगी, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चेक करना है, z की जो भी नेगेटिव लेसर वैल्यू है उससे हमें अपने बफर को अपडेट करना है। While if the condition changes, that means if you are sitting on the positive z direction and then you are looking towards the negative z direction, तो उस केस में आप देख रहे हैं जो z की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू की बात नहीं हो रही है, -2 इज ग्रेटर देन -8, है ना। तो ये किधर बढ़ रहा है, -2 -6 -8, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पास आपका पिक्सल क्या होगा, -2 होगा। तो ठीक है, तो उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपको इसको ग्रेटर देन की कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और आपका जो बफर है वो -इन्फिनिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बफर हैज टू बी इनिशियलाइज्ड विद -इन्फिनिटी एंड देन यू हैव टू चेक दिस कंडीशन, दिस इफ z इज ग्रेटर देन, ठीक है, समझ रहे हो आप कि अगर बफर को हमने इनिशियलाइज कर दिया -इन्फिनिटी से और पहली वैल्यू हमें मिली है -8 से हमने स्टार्ट किया, तो -8 इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी, सही बात है, ठीक है। ये साइन मैंने चेंज करना है इस कंडीशन में, दूसरी वाली सिचुएशन में व्हेन यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव z डायरेक्शन एंड यू आर सिटिंग टू द पॉजिटिव z डायरेक्शन। सो यू विल कंपेयर -8 विद -इन्फिनिटी एंड द कंडीशन वुड बी ऑपोजिट। हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, तो -8 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन -इन्फिनिटी, डेप्थ ऑफ एफर्ट चेंज हो जाएगी। अब हम दूसरी सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, जो एक ऐसा सरफेस हो गया हमारा जब यहाँ पर -6 है, ठीक है। तो कंडीशन क्या चेक होगी इस पर्टिकुलर XY पोजीशन के लिए, हम चेक करेंगे इफ -6 इज ग्रेटर देन -8, ट्रू,
तो यहाँ पर -6 अपडेट हो जाएगा और उसकी करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो हो जाएगी। सो इस तरीके से इस केस में भी आपका ये वाला जो सरफेस है इसका पर्टिकुलर एक्स पॉइंट कॉमा वाई पॉइंट जो होगा वो सबसे ज्यादा आपको विजिबल होगा। सो दिस एल्गोरिदम आप यहाँ पर एक ही केस समझा के आइएगा। यूजुअली हम इसी टाइप का समझाते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों केस समझाने हैं तो यू मेंशन द कंडीशन कि आपका व्यू डायरेक्शन क्या है, ठीक है, और कहाँ से आप देख रहे हो। दूसरा, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल चेंज द initial value of buffer, z buffer, whether it is positive infinity or negative infinity, ठीक है। कुछ बुक्स में देखिए हम नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी बात करते हैं। नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का मतलब है क्योंकि हम डिवाइस कोऑर्डिनेट्स के साथ डील कर रहे हैं तो हम एट द एंड नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट्स की तरफ ही रहते हैं। तो z की जो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 0 से 1 के बीच में आती है। तो बफर्स को वैसे भी इनिशियलाइज किया जाता है समटाइम्स, ओके। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि एल्गोरिदम का एक्चुअल बेसिक कंसेप्ट क्या है। सो वहां पर आपका नेगेटिव जी, नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी किससे आप बफर को स्टार्ट कर रहे हो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका व्यूइंग डायरेक्शन किस तरफ है। और फिर जो कंपैरिजन है वो भी आपका साइन जो है ये भी इसी बात पे डिपेंड करेगा, वेदर लेस देन आपको लेना है या ग्रेटर देन लेना है, बिकॉज द कंसेप्ट इज द सरफेस दैट इज क्लोजेस्ट टू द व्यू प्लेन हैज टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। और उसी का इंटेंसिटी वैल्यू आपको जो है फाइनली डिस्प्ले कराना है। तो दैट्स हाउ द जेड बफर एल्गो वर्क्स, okay. Zmax represents the farthest depth in Z buffer whether the viewer is looking in positive minus direction or negative Z direction, okay. अब हाँ, अब हम इस पे आते हैं कि हमें Z वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है, ओके, बिकॉज वी आर scanning every polygon surface pixel by pixel, okay. So for a pixel x comma y we have to calculate the corresponding z value, okay, because this algorithm is completely based on the z value. So z, for calculation of z हम क्या करते हैं, वी यूज द इक्वेशन ऑफ अ पॉलीगन। ये आपको याद होनी चाहिए कि एक पॉलीगन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस जी, ठीक है। 3D स्पेस में हम किसी पॉलीगन की जो इक्वेशन लिखते हैं ना वो ये होती है। अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम हम यहाँ से जी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन है, ये ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स, बी मल्टीप्लाइड बाई वाई, अब स्क्रिप्ट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। सो z इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस डी अपॉन सी। इस तरीके से आप z वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। बट हर एक सब्सिक्वेंट पिक्सल के लिए इस पर्टिकुलर चीज से आपका z वैल्यू निकालना काफी कॉस्टली होगा क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन, ओके, डिवीजन ऑपरेशन। तो अगर हमने पहले पिक्सल की z वैल्यू कैलकुलेट करी है तो उसके नेक्स्ट पिक्सल की z वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए आप देखिए, सिंस दिस एल्गो इज अ रास्टर बेस्ड एल्गोरिथम, तो आपको पता है कि रेस्टर में लाइंस बनी रहती है, एक पूरी एक स्कैन लाइन, दूसरी स्कैन लाइन, तीसरी स्कैन लाइन ऐसी बनी होगी। और इसमें सपोज मैं इस वाले पिक्सल को अभी कंसीडर कर रही हूँ, तो ये पिक्सल x है, ठीक है। यहाँ पर इसकी कुछ y पोजीशन होगी, x कॉमा y की आप z से ये वैल्यू निकालेंगे। अब फॉर द नेक्स्ट पिक्सल, तो फॉर द नेक्स्ट पिक्सल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1, ओके, y की वैल्यू तो सेम ही रहेगी इस पर्टिकुलर पूरी लाइन के लिए। सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ द नेक्स्ट पिक्सल वुड बी x कॉमा 1, ओके। अब तो हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 को इधर इस वाली जो वैल्यू है इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्सिक्वेंट z है, यानी कि हमने z निकाल लिया और नेक्स्ट पिक्सल के लिए हम अब z वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है इससे z डैश। तो z डैश इज इक्वल टू माइनस ए, x की जगह पे हमने लग दिया x प्लस 1 माइनस बी वाई माइनस जी। अब मैं इस टर्म को अगर एक्सपैंड कर देती हूँ तो आई विल गेट दिस, यहां से मैंने माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस डी, ये क्या है हमारा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस डी अपॉन सी, तो पूरा हमारा z ही हो गया, माइनस ए अपॉन सी रह गया। यानी कि वी कैन कैलकुलेट द सब्सिक्वेंट और इंक्रीमेंटल z वैल्यू by using the previous z value. So instead of using this operation, we can use this operation, although it also involves
division, but this surely is less complex than this particular operation. Okay, so that's how we calculate z values, and after calculating the z value for every pixel, we compare these pixels, we compare the z values and we update the z buffer, and then we update the corresponding intensity buffer, and depending upon the intensity value of that particular pixel x comma y, we will display. Okay, now talking about the limitation of the algorithm. तो आप इसके एडवांटेज भी लिख सकते हो, दैट इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पर आप जो ओवरलैपिंग सर्फेसेस हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो. दीज वर द एडवांटेजेस फॉर दिस एल्गोरिदम. नाउ अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो पहली लिमिटेशन हार्डवेयर लिमिटेशन ही है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको एक फ्रेम बफर के साथ साथ आपको एक नया मेमोरी एरिया भी चाहिए होगा, यानी एक जी बफर चाहिए. तो ये इसका लिमिटेशन है, या आप कह सकते हो ड्रॉबैक है. दूसरा, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज आप रेस्टर में क्या करते हो, एक एक पिक्सल को भी कंसीडर करते हो, यानी उस पिक्सल को भी कंसीडर, उस पर्टिकुलर पिक्सल को भी कंसीडर करते हो जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है भी, है ना. तो स्कैनिंग कैसे होती है, स्क्रीन के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट, तो वो पूरा होगा, है ना. सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. थर्ड, इट कैन ओनली डील्स विद ओपेक सरफेस. सो ये इसका जो है एक मेन ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ ओपेक सर्फेसेस के साथ काम कर सकती थी, और ये क्योंकि इसका ड्रॉबैक था, इसके लिए हम इसकी जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो पढ़नी है, दैट इज A buffer algorithm. So this one is depth buffer algorithm, C buffer algorithm, and since it has some limitation that it can only work with the opaque object, that means it can only work with the non-transparent surfaces. We have another algorithm, A buffer, that removes this limitation. तो ये opaque surfaces का क्या है इशू? opaque surfaces का ये इशू है कि अगर आप इस डायग्राम में देखिए, ये इस टाइप के आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, और ये तीनों अभी क्या है, ओपेक सर्फेसेस है. दैट मींस दीज आर नॉन ट्रांसपेरेंट. नॉन ट्रांसपेरेंट होंगे तभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहीं पे ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको देखना पड़ रहा है कि कौन सा पार्ट हाइड हो जाएगा. बट सपोज इफ दीज सर्फेसेस आर ट्रांसपेरेंट, ओके, अगर ये तीनों सर्फेसेस ट्रांसपेरेंट होंगे, सपोज ग्लास की सर्फेसेस हैं, तो उनको अगर आप प्रोजेक्ट करोगे, तो अगर कोई ये ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस हैं, तो फिर तो आपको इसके थ्रू ये वाला ऑब्जेक्ट भी दिखना चाहिए और ये वाला ऑब्जेक्ट भी दिखना चाहिए, यानी कि ये तीनों ही ऑब्जेक्ट आपको दिखने चाहिए एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, है ना. यू कांट इग्नोर द इंटेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक्सल of this object, or you can't ignore the intensity of this pixel. So यहाँ पर लिमिटेशन ये थी कि एक इंटेंसिटी वैल्यू पे हम एक पिक्सल पोजीशन पे एक इंटेंसिटी वैल्यू को कंसीडर कर रहे थे. वी cannot accumulate the intensity values of all these three surfaces at a particular x comma y point. Okay, so that was the limitation with z buffer algorithm. Okay, I hope you understood. Thank you.